تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں. آپ سبحان اللہ، مجھے امید ہے آپ کہیں گے. تنی ہے نور. آخر میں چاہتا ہوں ہندوستان کا بڑا اچھا مبلغ، خطیب باوقار، مقرر اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا آفاق صاحب قبلہ مداز اللہ نورانی کی بارگاہ میں عرضیہ پیش کرتے ہیں کہ حضور بالا مائک پر تشریف لائے اور اپنی بہترین خطاب سے ہم تمام حضرات کے دلوں کو منور و مزلہ فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. شعر کے ساتھ میں حضور بالا کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کبھی میرا مقدر چمکے، خواہ میں وہ ماہ منور چمکے. بس یہی سوچ کر میں ڈال دیتا ہوں چھت پر دانے، جانے کس روز مدینے کے کبوتر چمکے. السلام علیکم. پھر کبھی وقت ملے گا تو میں سناؤں. دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان، عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، نوجوان، ہم عمر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کان کھول کر سنیے. تو حضرات گرامی اگر اجازت ہو تو مکملاً شروع ہو جائے. آواز پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے لڑکے، اے بچوں، خاموش ہو، بالکل خاموش ہو جاؤ. ایسا خاموش ہو جاؤ جیسے پیدا نہیں ہوئے تھے. تھوڑی دیر یار میری گفتگو کو سن لو، تھوڑی دیر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اے قرب و جوار کے زندہ دل مسلمانوں، آج میں نے نبی کی آمد پر ربیع الاول کے بابرکت متبرک مہینے میں قرآن کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس آیت کریمہ کے تحت تھوڑی دیر گفتگو کرنے سے پہلے میں بہتر ہی نہیں بلکہ مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے سب سے پہلے اس آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ چلے جائیں گے. لیکن قسم خدا کی یہ جو فرشتے حاضر ہیں، جو ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، جب محفل ختم ہوگی، محفل کا اختتام ہوگا تو ذرا غور کرو یہ فرشتے کہاں چلے جائیں گے. مسلمانوں غور کرو، یہ فرشتے نہ ہمارے گھر جائیں گے، نہ قاری علیم الدین صاحب کے گھر جائیں گے، نہ کمیٹی والوں کو گھر جائیں گے، نہ بھکرولی والوں کے گھر جائیں گے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں یہ فرشتے حاضری دیں گے، عرض کریں گے مولا تو نے دنیا میں میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ اے فرشتوں دنیا کی سیر کرو. آبادی سے گزرا، جنگلات سے گزرا، صحرا سے گزرا، سٹی سے گزرا، قصبے سے گزرا، شہر سے گزرا، دیہات سے گزرا، لیکن یا اللہ، یا اللہ، ایک ایسی آبادی سے جب رات کے سنیاٹے میں میرا گزر ہوا، ایک ایسے گاؤں سے رات کی تاریکی میں جب میرا گزر ہوا تو بھکرولی والوں کو کیا دیکھا، اور ایسا بھکرولی کا جلسہ منعقد کیا گیا کہ صرف
भखरौली के लोग नहीं थे, बल्कि कोठारा के लोग भी थे, बदरौली के लोग भी थे, कुर्बो जवार के तमाम लोग थे। मौला रात के सन्नाटे में बैठ करके मैंने देखा कि तेरा तस्करा हो रहा है। या अल्लाह मुझसे रहा नहीं गया, फिर ड्यूटी करना बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए और नबी की महफिल में बैठ गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई तवज्जो की जरूरत है। आज कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ये मैं नहीं बेटा, कोई ये शैतान जो होता है ये कोई दूसरी शक्ल इख्तियार करके नहीं आता जी। और इससे पहले भखरौली की सरजमीन पर मैं जब आया था तो मैंने बताया था कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस रचाना तो इन मिलिट्री वालों को जलसे के आगे मत बिठाना। अरे मैंने देखा यार ये बड़े बड़े जलसों पर चंद मिनटों में पानी फेर देने वाले बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में मैंने देखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भखरौली गांव के बच्चे माशाअल्लाह, क्या कहना सुभान अल्लाह, एक बच्चा भी नहीं सोता हुआ नजर आ रहा है। देखो 50 ग्राम का बच्चा है, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ पलकों को नहीं झपका रहा है, टकटकी बांधे देख रहा हूँ। ये नबी का सदका नहीं है तो और क्या है? बोलो यार, ये नबी का सदका नहीं तो और क्या है? और जब 5 साल के बच्चे का ये आलम है तो 25 साल के नौजवानों का आलम क्या होगा? अरे जब इन बच्चों को नींद नहीं आ रही है, इन बच्चों को नींद नहीं, ए बेटा खबरदार, फरिश्ते देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल मुतवज्जा हो जाओ बेटा थोड़ी देर। तो मैं अर्ज कर रहा था, क्या अर्ज कर रहा था? डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए फरिश्ते। या अल्लाह, ए बेटा, ए बाबू थोड़ा बाद में बात कर लेना। ए बेटा बात करना हो बाबू, मैं मना नहीं करता, थोड़ा ये कमरा में चला आया हूँ, चारपाई खाली, वहाँ चले जाया करो, बात करके फौरन चले आए जी, मैं पाबंदी नहीं लगा। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में डायरेक्ट हाजिर हुए। मौला जब भखरौली की सरजमीन से मेरा गुजर हुआ तो मैंने क्या देखा, भखरौली के जिंदा दिल मुसलमानों ने अपनी पाक कमाई को खर्च किया है, अपनी रकम को खर्च किया है, अपने पैसे को खर्च किया है, अपने रुपयों को खर्च किया है और रुपया से जलसा सजा करके, रुपया खर्च करके जलसा सजाया है, नबी की महफिल रचाई है। मैं भी बैठ गया, मैं भी, और उस वक्त तक जलसे में बैठा रहा जब तक तेरे नबी का तस्करा होता रहा, जब तक तेरे हबीब का तस्करा होता रहा, जब तक तेरे महबूब का तस्करा होता रहा। या अल्लाह, और जैसे महफिल का इख्तिताम हुआ है, जैसे सलातु सलाम हुआ है, सलातु सलाम पढ़ के डायरेक्ट तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। या अल्लाह, रात के सन्नाटे में बैठ कर तेरे महबूब का लोग तस्करा सुन रहे थे, का जिक्र कर रहे थे। इतना सुनना था मुसलमानों कि अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज भखरौली की सरजमीन पर मेरे महबूब की महफिल में जितने लोग भी शरीक थे, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज मैंने सबकी बख्शिश फरमा दिया है, सबकी नजात फरमा दिया है, सबकी मग़फ़िरत कर दी है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला उस महफिल में वक्त का गद्दार भी बैठा हुआ था, वक्त का पापी भी बैठा हुआ था, वक्त का गुनाहगार भी बैठा हुआ था, वक्त का गद्दार भी बैठा हुआ था, वक्त का सियाहकार भी बैठा हुआ था। मौला क्या सबको बख्श दिया तूने? या अल्लाह, क्या सबको बख्श दिया तूने? अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये माना कि उस महफिल में वक्त का गद्दार भी था, वक्त का गुनाहगार भी था, वक्त का सियाहकार भी था, लेकिन जहाँ ये सब थे वहाँ अल्लाह के नेक बंदे भी थे। चल कर कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुफ़ाज़ किराम भी हाजिर थे, क़ुर्राए किराम भी हाजिर थे, उलमा भी हाजिर थे, शौरा भी हाजिर थे, जन्नती जमात पूरी की पूरी हाजिर थे। तेरे नबी का तज़किरा हो रहा था, ऐ
اے فرشتوں تم نہیں جانتے، اے میرے فرشتوں آج میں نے ان نیک بندوں کے صدقے و توسل سے گناہگار بندوں کو بھی بخش دیا ہے۔ گناہگار بندوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت مولانا عباس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرزمین بخروی۔ حضرات گرامی مبارک ہو تمہیں، واہ بھائی مبارک، ماشاءاللہ، زندگی کا سب سے بڑا کام کیا ہے آپ نے، حق ہے، حق ہے۔ سب سے بڑا کام کیا ہے بھکرولی والوں۔ بس اللہ سے دعا کرو اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ قسم خدا کی اگر قبول کر لیا، اگر قبول کر لیا اللہ نے، تو یہی میلاد کے محفل ہم سب کے مغفرت کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آئے گا، نجات کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اے بیٹا ان بچوں کو پکڑ لے، ان سے کہہ دے سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھکرولی والوں نے ان کو ایجنٹ بنا کے بٹھا دیا کہ آج کے جلسے میں جو کچھ بھی کرنا ہے سب تمہیں کو کرنا ہے۔ سبحان اللہ کہو گے تو تم ہی کہو گے، ماشاء اللہ کہو گے تو تم ہی کہو گے، چلاؤ گے ڈسٹرب کرو گے تو تم ہی سب کچھ کرو گے، لیکن ہم بالکل بالکنی میں بیٹھے ہیں، بالکل بدیو ذمہ رہیں گے۔ اے لوگوں سنو، میں تمہارے سبحان اللہ کا محتاج نہیں ہوں۔ بار بار سبحان اللہ کہنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ نہیں سمجھ پائے آپ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن کا ایک حروف جب تلاوت کیا جاتا ہے، ایک حروف جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی نیکیاں؟ اور یہ سبحان اللہ میں کتنی حروف ہے؟ ذرا موبائل نکالو اور اس میں کیلکولیٹر ریسرچ کرو اور ذرا جوڑو کہ سبحان اللہ میں کتنے حروف ہیں۔ 9 حروف ہیں۔ کتنے حروف؟ 9 حروف ہیں۔ اب ذرا جوڑو کہ اگر ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا تو قسم خدا کی مسلمانوں 90 گناہوں پر قلم پھیر دی جائے گی، 90 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اور سنو جس مقام پر سبحان اللہ کا ورد کیا جاتا ہے رحمت و نور کی بارش نازل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ بچوں کو منع کر دو؟ یہ قطعی نہیں کہہ کر سکتے سبحان اللہ، میں محتاج نہیں ہوں۔ اور یہ مت سمجھنا کہ مولانا آفاق کی تقریر میں ہم سبحان اللہ کہیں گے تو 2.5 کلو گڑ لے کر ان کے پٹھیا میں ملیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ گناہوں پر قلم تمہارے پھیری جائے گی، قمر جرمنی کے گناہوں پر نہیں۔ حق ہے، حق ہے، تمہاری مرضی ہوگی تو کہنا اور تمہاری مرضی ہوگی تو نہیں کہنا۔ نہیں کہنا، ان کو منع نہیں کر سکتے۔ کیسے کمیٹی میں ہے ان 50 گرام بچوں کو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں مارنا نہیں، کیونکہ ان کی خطا نہیں ہے، خطا تو ہے پہلے اسکول کی۔ خطا کس کی ہے؟ اچھا پہلا اسکول کون ہے؟ پہلا اسکول کیا ہے میرے بھائی؟ ماں کی گود ہے۔ یاد رکھو اگر بچہ ماں کی گود سے نہ سدھرا پوری زندگی نہیں سدھر سکتا ہے۔ ان کی بچوں کی خطا نہیں ہے، ماں باپ کے تربیت کی خطا ہے۔ ان کو مت ڈانٹو۔ ہاں یہ دیکھو، یہ دیکھو، ہاں تعریف ہو گئی نا تمہارے بپا کی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھیں یہ لوگ شاید گھر چلے گئے تھے لیکن جیسے میں بیٹھا ہوں آ گئے ہیں، آ گئے۔ نعرہ تکبیر، زور سے بولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرات گرامی یہ متوجہ اس لیے کر رہا ہوں آپ کو، اور پہلے تو آپ یقین جانیں میری بھی بہت عادت تھی سبحان اللہ کہلوانے کی یار، لیکن بڑا خطرناک حادثہ ہو گیا میرے ذمہ۔ آپ یقین جانیں مجھ پہ جو گزرتی ہے میں وہی کہتا ہوں، حادثہ بڑا خطرناک حادثہ ہوا۔ دنیا میں ایک سے جاہل، اور جاہل نہیں بہت بڑے بڑے ابو جہل آج بھی پڑے جی، بڑا خطرناک حادثہ ہوا میرے بھیا۔ جی،
बड़ा खतरनाक हादसा। वो हादसा क्या था मैंने बताया नहीं, बहुत ज्यादा आदत थी मेरी सुभान अल्लाह कहलवाने की। मैं भी जब बैठता कुर्सी खिताबत पर कमर भाई, तो मैं भी कहता कहो मचल कर सुभान अल्लाह, कहो गाजी के नाम पर सुभान अल्लाह, कहो ख्वाजा के नाम पर सुभान अल्लाह, कहो औलिया इज़ाम के नाम पर सुभान अल्लाह, कहो राजा महाराजा के नाम पर सुभान अल्लाह। एक नौजवान ने थोड़ी देर बर्दाश्त किया, थोड़ी देर जब उससे न रहा गया तो बीचों बीच मजमे से बम्बैया लाठी लेकर खड़ा हो गया। कहा है मौलाना जबान सीधे निकालो। क्या कहा मौलाना जबान सीधे निकालो, सीधे निकल। कहा है मौलाना आपको बुलाया गया है तकरीर करने के लिए, तकरीर करियो मौलाना तो तुहिन करियो। आपको मदऊ किया गया है जलसे में बयान करने के लिए, बयान करियो मौलाना तो तुहिन करियो, तकरीर करियो मौलाना तो मतलब तुहिन करियो। और ये मौलाना ज्यादा तंग न करो, पहली बार हम जलसे में आए हैं, सुभान अल्लाह कहियो तो तुहिन कहियो, माशाअल्लाह कहियो मौलाना तो तुहिन कहियो। और ये मौलाना जिंदगी में पहली बार हम जलसा में आए हैं, ज्यादा तंग न करो वरना पर भाग जा, वरना पर यकीन मानोगे। मुबीन भाई गौर करें आप, तब से यार मैं बहुत ज्यादा सहम गया, ज्यादा सुभान अल्लाह जो है कहलवाने का मैं आदी नहीं रहा। आपकी मर्जी होगी तो कह देना सुभान अल्लाह, और आपकी मर्जी होगी तो ना कहना, लेकिन जाना मत। लेकिन सुनो, जिसको नबी से ज्यादा नींद प्यारी हो वो इसी वक्त जा सकता है, नबी से ज्यादा घर प्यारा हो वो भी जा सकता है। मैं किसी को रोकने वाला नहीं। मेरे जलसे में 5 लोग होंगे लेकिन सच्चे नबी के गुलाम होंगे, सच्चे नबी के आशिक। मैं मजमा देख कर तकरीर नहीं करता हूँ। मेरे जलसे में अगर 5 लोग होते और मुकम्मल नबी के दीवाने होते, नबी का तस्करा सुनने वाले होते हैं, तो सुनो, मैं जिस तरह बड़े से बड़े कॉन्फ्रेंस में तकरीर करता हूँ ठीक उसी तरह से 5 लोग होते। और ये भी याद रखो, 12 बजे से पहले तकरीर करना तो सबको आता है, लेकिन 12 बजे के बाद तकरीर करना आसान नहीं होता। दुनिया का कोई कितना भी बड़ा मुहद्दिस क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा मुकर्रिर क्यों ना हो बेटा, तकरीर खुद नहीं करता वो। कारी मेरा तकरीर खुद नहीं करता, बल्कि सामईन जिस तरह से चाहते हैं मुकर्रिर से तकरीर करवा लेते हैं, कोई कितना भी। और याद रखो, जब अच्छा टाइम मिलता है तो तकरीर भी बड़ी अच्छी होती है। लेकिन मैं किसी भी जलसे में जाता हूँ छटपटाता नहीं हूँ, इतने बजकर इतने मिनट पर नंबर होना चाहिए। मैं कोई गुफ्तगू नहीं करता। आपने बुलाया, आपका जलसा है, क्या बात। जब चाहे बुलवाए, चाहे बुलवाए या चाहे खिला करके सुलवाए, हमारे सिहत पर क्या असर है? बोलो है कि नहीं मेरे भाई? तो एक बार दोनों हाथों को दराज करके कह दो या रसूल अल्लाह। अब आओ बिना किसी ताखीर नबी का तस्करा मुलाहिजा फरमाए। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। सुनो, उफ़क़ के सुर को होठों पर कभी लाली नहीं होती। क्या बात है। उफ़क़ के बेटा कुछ काम की बात सुन लिया करो, और थोड़ा ये सामने वाली कुर्सियां जो खाली हो गई, आ जाओ बेटा आ जाओ। हो सकता है अल्लाह हम सबका बैठना कबूल कर ले यार, ये इस जलसे को अल्लाह कबूल कर ले, और आप भखरौली वालों के साथ में मेरी भी बख्शिश का जरिया बन जाए, मेरी भी बख्शिश का जरिया बन जाए। हो सकता है अल्लाह अगर इस जलसे से कबूल कर ले तो मैदान महशर में भी एक जलसा मुनक्किद कर दिया जाए। को बुला के वहां भी तकरीर करवा दी। जी जी माशाअल्लाह, क्या बात है भाई, अल्लाह पसंद कर ले कोई ना कोई। ए बाजी हट 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 हट, कम बकते हैं। देखो इधर देखो, इन औरतों को मेरे नबी का फरमान याद नहीं,
ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب تک کہ 12 ربیع الاول شریف کی صلح صادق میں میرے آقا پیدا نہیں ہوئے تھے، کیا پوزیشن تھی ان کی؟ اگر اجازت دے دے تو چند جملوں میں بتا دیں۔ بتائیے۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے جب میرے آقا کے پیدا ہونے سے پہلے جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو آبادی سے نکال کر ایک اندھیری کوٹھری میں بند کر دیا جاتا، 1 سال تک اس عورت کو بغیر نمک کا کھانا کھلایا جاتا، 1 سال تک اس عورت کو پاخانہ پیشاب کے لیے پانی نہ دیا جاتا۔ یہی تک بس نہیں، جب کسی کے گھر میں یہ پیدا ہو جاتی تھی میرے آقا کے پیدا ہونے سے پہلے تو باپ خود ان کو لے کر کے جاتا تھا اور زندہ قبر کھود کر کے ان کو گاڑ دیا کرتا تھا۔ میرے آقا پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد جب میرے آقا کی عمر شریف 25 سال کی ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ جو 2 بار کی بیوہ تھی، 2 بار کی بیوہ تھی، حضرت خدیجہ سے شادی کر کے ان بیواؤں کے مقام کو بلند کر دیا، ان عورتوں کے مقام کو بلند کر دیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ اور جن کے صدقے میں زندگی ملی ہے، اگر کوئی بھی عورت نبی کی محفل میں بیٹھ کر کے معاملہ چبا لے تو قسم خدا کی ذرا غور کرو، اللہ نے اگر عقل دیا ہے کیا میدان محشر میں ان کی خیر ہے؟ امام صاحب حضرت بتائیے، سب کی خیر تو ہے، ان کی خیر ہے؟ ارے جو عورت نبی کی محفل کے خلاف ہو جائے، نبی کی محفل میں بیٹھ کر کے معاملہ چبا لے، کیا میدان میں قسم خدا کی اللہ سے دعا کرو میرے بھائی میرے ساتھ میں، یا اللہ میری ماں بہنوں کو پروردگار عالم ہدایت نصیب فرما دے، آمین کہہ دو یار، معلوم نہیں کس کا آمین کہنا، اللہ قبول کر لے اور ہم سب کے بخشش کا ذریعہ بن جائے، آمین ثم آمین۔ اب مجھے یقین ہے کہ نہیں یہ معاملہ بڑی اچھی ماں بہنیں، خاص کر بھکرولی کی ماں بہنیں جو ہیں قسم خدا کی ان کے پاس علم ہو یا نہ ہو لیکن الحمدللہ بڑی سمجھدار ہے، لیکن اب کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ شیطان دوسری شکل میں نہیں آتا، کبھی کبھی ارے آپ کو میں کیا بتاؤں قمر بھائی، پرسوں کے جلسے میں جب مولانا کا بیان میرے بھائی شباب پر ہوا تو 2 کتا مجمع کے بیچ میں آئے اور لڑ گئے، قسم خدا کی 2000 کا مجمع نظام درہم برہم ہوئے، کبھی کبھی تو کتا بن کر کے پورے جلسے کا نظام درہم برہم کر دیتا ہے کتا۔ اور ایک جلسے کا واقعہ بتاؤں، بارہ بنکی ضلع میں میرا مین حلقہ ہے تقریر کا سیتا پور، اور یہ عابد رضا جانتے ہیں، قمر جروری جانتے ہیں، میں مہینے کے 20 دن بارہ بنکی رہتا ہوں، کبھی عالم پاؤں، کبھی بھیلسر، کبھی تلسی پور۔ ایک جلسے میں حضرت کیا بتاؤں، جی کتا نہیں 2 میڈک کود پڑے، جی ان تو آپ ذرا غور کی، ہم اور آپ کتنے بڑے ہیں اور میڈک کتنا چھوٹا ہے، سن بے میڈک کتنا چھوٹا ہے، اتنا 2 میڈک جلسے میں آ گئے اور ان میڈکوں نے ان نبی کے جلسے میں بھاگ دوڑ شروع کر دی، اچکنا شروع کر دیا، اب مولانا کی تقریر کوئی نہیں سن رہا ہے، میڈک کا اچکنا دیکھا جا رہا ہے۔ تو شیطان پھر کوشش کرتا ہے کہ نبی کا جلسہ برباد ہو جائے۔ اب ہم کو اندازہ لگانا ہے، الحمدللہ بھکرولی کا مسلمان اب سمجھ چکا ہے کہ نبی کی محفلیں جب رچائی جاتی ہیں تو طرح طرح کے خلل ہوتے ہیں، جی اور یہ ایک بات تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور آج نہیں کل کے جلسے میں بھی کہوں گا انشاءاللہ کہ آج بھکرولی کا زندہ اس جلسے میں جو بھی رقم آپ نے خرچ کی ہے الحمدللہ بڑی پاک رقم خرچی کی ہے، اور جب جلسے میں محنت کی کمائی خرچ کی جاتی ہے تو وہ جلسہ کامیاب ہو جایا کرتا ہے، ناکامیاب نہیں۔ ہاں، اور اللہ اگر کسی کا 10 روپیہ نبی کی میلاد میں لگا لیا کرے نا تو ہائے ہائے نہ کیا کرو کہ مولوی نے میری جیب کاٹ لی، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یا اللہ میرے 20 روپیہ کو تو نے اس لائق سمجھا اور میرے 20 روپیہ کو تو نے قبول کر لیا، نبی کا جلسہ ہو گیا، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ طیب ویحب الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔
سبحان اللہ اللہ پاک ہے سبحان اللہ بیٹا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے. اور آج اس محفل میں بیٹھ کر عہد کر لو، آج کے بعد آنے والے سال میں اگر زندگی باخیر رہی نبی کے صدقے میں جی، تو اس سے بڑھ کر آمد مصطفیٰ کانفرنس رچاتے ہوئے نظر آئیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر زندگی رہی اس سے بڑھ کر کے آمد مصطفیٰ کانفرنس رچاتے ہوئے نظر آئیں گے. قسم خدا کے بڑے مقدر کے دھنی ہو، بہت پیسے والے پڑے ہیں اس دنیا میں، بہت روپے والے، لیکن سنو اللہ سب کے روپے کو پسند نہیں فرماتا نبی کی میلاد کے لیے. اللہ سب کے پیسے کو، سب کے بینک بیلنس کو قبول نہیں کرتا نبی کے جلسے کے لیے. جس کی رقم چاہتا ہے پہلے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے اور نبی کی میلاد میں لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. کروڑ پتی تو بہت پڑے ہاں، اور جب ان کے سامنے امام صاحب جاتے ہیں تو سنو اللہ اکبر. اب کیا گزرتی ہے امام صاحب پر میں بتانا نہیں چاہتا، امام صاحب جانے، لیکن دعوے کے ساتھ اس بات کو میرے بھائی کہہ سکتا ہوں. آج اگر اس جلسے میں کسی نے اس سامیانے کا پیپ کھڑا کر دیا، واہ واہ واہ، بہت عمدہ، حق ہے. غور کرو، اگر کسی نے نبی کی محفل سمجھ کر کے جھاڑو لگا دیا، اور اگر کسی نے ایک راک باندھ دیا کھمبے میں، اگر کسی نے شامیانہ لگانے میں مدد کر دی، قسم خدا کی اگر ایک ادا اللہ نے قبول کر لیا تو سنو ہم سب کے بخشش کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آئے گا، مغفرت کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے سنو اگر کوئی جلسہ رچانے کے لیے آگے بڑھے تو ہاتھ بتا دیا کرو، یہ نہیں کہ اکیلے ایک شخص کو بل چڑھا دیا کرو. کیا جملہ، ماشاءاللہ. بل نہ چڑھائیے گا، کیونکہ ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں آج کے اس محفل میں کس نے کتنی محنت کی ہے. واہ، ماشاءاللہ. پر نام نہیں ظاہر کروں گا، جی، اللہ جاننے والا ہے کس نے کتنی محنت کی ہے. بولو ہے بیٹا کہ نہیں؟ اللہ جاننے والا ہے حضرات. لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، روزانہ اتنے پسینہ بہتا ہے جی. آپ کو نہ میرے پسینے کی فکر کرنا ہے نہ آواز کی فکر کرنا ہے. بس یہی گزارش کرتا ہوں کہیں گستاخی نہ ہو پائے نبی کی محفل میں، تھوڑی دیر میری طرف توجہ ہو جائے. اب تک آپ نے کسی بھی جلسے میں ہماری آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، عادت کے مطابق چاہے ایک ہی شعر میں پڑھتا ہوں لیکن پڑھتا ہوں. پڑھیے. لیکن آج میری آواز اجازت نہیں دے رہی ہے میرے بھائی. کرے تو کیا کرے؟ ابھی جب قمر جروری صاحب، قاری علیم الدین صاحب اور میرا شاگرد یہ جو بیٹھا ہوا ہے مولانا عابد رضا صاحب، یہ جب نبی کی نعت پڑھ رہا تھا تو قسم خدا کی میں چھٹ پٹ کر رہا تھا، چھٹ پٹ کر رہا تھا کہ پڑھ تو نہیں پاتا نبی کی نعت، لیکن اگر مل گیا نمبر تو چند اشعار پڑھ کر کے حضرت حسان کی سنت ضرور ادا کروں گا. لیکن آج صرف ہم ہی نہیں پڑھیں گے، آج میرے ساتھ میں آپ کو بھی عہد کرنا ہے، ماں بہنوں کو بھی عہد کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی عہد کرنا ہے. کیا عہد کرنا ہے کہ اب تک تو قمر جروری نے نبی کی نعت پڑھی ہے، قاری عابد رضا نے نبی کی نعت پڑھی ہے، قاری علیم الدین نے نبی کی نعت پڑھی ہے، تنویر عالم جروری نے نبی کی نعت پڑھی ہے. لیکن آج کے بعد انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو آج کے بعد ہم چھما نہیں گنگنائیں گے، بلکہ ہم سب نبی کی نعت گنگنائیں گے، ہم سب نبی کی نعت پڑھیں گے. جی جی، ماشاءاللہ. ہم سب نبی کی نعت. بیٹا کوئی بھی جلسہ ایسا نہیں گیا جس جلسے میں تقریر سے پہلے میں نے چند اشعار نہ پڑھے. جی جی، لیکن کل کی کمیٹی والوں نے اتنا بنڈل میک لگا دیا کہ کلیجہ کھچ کر کے میرا منہ کو آ گیا وہ بھی. لیکن آج ماشاءاللہ یہ میرے کرن بھیا کی دین ہے. یہ کرن کہاں گیا؟ یہ ایسے کرن کو بٹھا دیا کہ منحوسیت پھیلا رہا ہے. اللہ اس بچے کو ہدایت دے. اے بابو اس کے کنوا میں کہہ دو سبحان اللہ.
ए बेटा, स्टीयरिंग के सामने बैठे हो और जब ड्राइवर के सामने कोई बैठता है और जब नींद आती है क्या होता है? अगर घाघरन कूदब तो तुरुक लेके कूदब भाई। अगर स्टीयरिंग मुड़ जाए हाँ। और अगर इनको देखकर, क्योंकि 18 रातों का जगह हुआ हूं मेरे भाई, कितनी रातों का? 18 रातों का जगह हुआ यार। कहां तक आवाज साफ? ये तो आपकी दुआएं हैं कि इतनी गुफ्तगू। हाँ लेकिन ए बाबू, अगर पेशाब की हाजत हो तो चले जाना मेरे भाई। कितना भी डांटू लेकिन बैठना नहीं, क्योंकि भिवंडी के जलसे में एक शख्स बार बार उठता, बार बार डांट करके बिठाता, लेकिन एक बार ऐसा बैठा नहीं। आज के जलसे कोई नहीं जा सकता, कोई जा ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता है अनाउंसर के अलावा, कतई कोई नहीं जा सकता। अनाउंसर का इजाजत है कि उसकी इतनी जिम्मेदारियां बन जाती हैं कि जब से बेचारा वो बैठ जाता है कलाम रब्बानी के वक्त, इख्तिताम तक नहीं उठता, इख्तिताम तक नहीं उठता, बेचारा पेशाब करने की फुर्सत भी नहीं पाता। जी क्योंकि अनाउंसर की सारी जिम्मेदारी। आज को इजाजत दे दीजिए। जी वही तो कह रहा हूँ, जाने के लिए तैयार भी जाइएगा नहीं वरना मैं चला जाऊँ, लेकिन आप मुतमईन रहें, मेरे तरफ से बेटा कोई पाबंदी नहीं है बाबू, मेरे लाल, कोई पाबंदी नहीं। भिवंडी के जलसे में एक शख्स बार बार उठता, अब मौलाना को क्या पता कि बार बार ये क्यों उठ रहा है, क्यों उठ रहा है बार बार। मौलाना बार बार डांट करके बिठा देते, लेकिन एक बार ऐसा उठा, ऐसा बैठा कि जलसा खत्म हो गया, सारे के सारे लोग घर चले गए, लेकिन वो बैठा के बैठा रह गया। जी बैठा रह गया। अब मुंतजमीन गए, अब कमेटी के लोग गए, क्यों गए? अब तक मेरे जलसे के तू बर्बाद करने पर तुला हुआ था। जैसे मौलाना की तकरीर शबाब पर पहुंचती तो खड़ा हो जाता, अब क्यों नहीं जा रहा है? तो अब क्या करूं जा करके? जो होना था हो गया, जो होना था। मेरे भाई अल्लाह के वास्ते यार ऐसी कोई मजबूरी होगी यार, चले जाना मेरे भाई, मेरे तरफ से कोई पाबंदी नहीं। हजरात गिरामी, मेरी बातों से आप गुस्सा ना होइएगा, मेरी बातों को आप गलत ना महसूस कीजिएगा। हम रोजाना जलसे जुलूस करने वाले, हमको पता है कि जब नबी के जलसे में आप थोड़ा सा हंसेंगे नहीं तो लतीफा बहुत लाजवाब था, लतीफा बहुत लाजवाब था। माशाल्लाह अभी मुकम्मल शुरू भी नहीं हुआ है यार, लेकिन वाह रे भखरौली गांव के जिंदा दिल मुसलमान, आवाज भी साथ नहीं दे रही है, लेकिन सुनो आज अगर आपने साथ दिया तो कसम खुदा की पूरी जिंदगी याद रखूंगा मैं, क्योंकि पहली बार इतनी आवाज मेरी बैठी है। इसलिए आप लोग ना बैठ जाओ मेरे भाई, आप लोग अपनी आवाजों को उठा दो। और मेरा दावा, ये माँ बहनें मामला नहीं कर सकती जब तक मेरा बयान चलेगा, ये मेरा दावा है, याद कर लीजिए। और वो कौन ऐसी औरत होगी जो मामला करेगी? मैदान महशर में अगर फातिमा ने पूछ लिया क्यों मेरी बहन, मैंने तो करबला की सरजमीन पर अपने लाल को कटवा दिया और तू नबी की महफिल में बैठकर खामोश नहीं रही, कोई जवाब होगा इनके पास? लेकिन मेरा वादा है, बहुत समझदार है माशाल्लाह, मैं नबी की महफिल को समझ चुकी है। हाँ यकीनन अभी तक ये सपने में थी, अब तक ये ख्वाब देख रही थी, अब ये समझ पाई है हकीकत में नबी का जलसा है। सुभान अल्लाह। तो हजरात गिरामी, आयत जो मैंने पढ़ी है उसके मुताल्लिक, लेकिन आज आपको आवाज नहीं देखना है मेरे भाई, बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह आवाज नहीं देखता बेटा। कमेटी के लोगों, अल्लाह आवाज नहीं देखता, अगर कोई चीज देखता है तो अपने नबी की तारीफ देखता है। कह दो यार मचल कर सुभान अल्लाह, अपने नबी की तारीफ देखता है। आवाज तो हम और आप पसंद करते हैं, फला शायर है बड़ा अच्छा खींचता है, और कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, फला शायर इतना अच्छा खींचता है। हाँ सुबह चौराहों पर पहुंचेंगे, एक शायर आया बड़ा अच्छा खींचता था, कौन सा शेर पड़ा था ये तो हमको नहीं पता है, अरे खींचता इतना खींचता था कि मौत बना के छटपटा जाता था।
इतना बढ़िया खींचता था, शेर नहीं समझ रहे, लेकिन अब आपको खींचतान नहीं सुनना है, बस शेर पे गौर करना है और शेर पर गौर करना है। और उससे पहले एक हाथ आका हसन के नाम पर उठा दो और दूसरा हाथ आका हुसैन के नाम पर उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और कह दो या या रसूल रसूल अल्लाह। अल्लाह। मुबीन भाई आप जरा मेरे नजरिया के सामने आ जाओ ये सामने भैया जी, मैं आपको देखूं, आप सब मुझे देखें, देखने का मजा, आज की रात देखने का मजा। आप मेरी तरफ देखें जी देखो, हाँ माशाअल्लाह। लेकिन आवाज पे बिल्कुल गौर न कीजिए। जी बाबू थोड़ा सा साथ दे दो यार, जिंदगी में पहली बार इतनी मेहनत पड़ रही है बोलने में, वरना मौलाना आफाक की कभी आवाज वाज नहीं बैठती है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन मैंने पहले बताया इतना बंडल मैक लगा दिया घाघरा घाट वालों ने कि अब क्या बताऊं। हाँ, पूरा रबीउल अव्वल दिल से दुआ निकलेगी उनके लिए जो मैक लगाए हुए। लेकिन करण बाबू तुम अपने बारे में कुछ मत सोचना जी, ये इस बच्चे का सेट नहीं है, तनवीर आलम से, इसका घर पबना में बड़ी अच्छी सेटिंग करता है। शूटिंग माशाल्लाह। हाँ, बहुत उम्दा सेटिंग करता है, किसी भी जलसे में जाता है, जलसा कामयाब हो जाता है। लेकिन ये जितना आप देख रहे हैं ये इसका है ही नहीं, सिर्फ सेटिंग करने के लिए भेजा गया। इस बच्चे ने मुझसे पहले बता दिया, हजरत मेरा वो वाला मैक नहीं है, मैं दूसरे का सेट लेकर के आया। जी हाँ, पहले ही बता दिया। हाँ, और इस बच्चे ने मुबीन को कारण दे दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो जलसे कामयाब होते रहेंगे आप इंशाअल्लाह। आप भी कह दो हाँ। तो हजरात गिरामी शेर मुलाजा फरमा ले, 12वीं तारीख। हाँ सुभान अल्लाह न क्यों, ना तो अब बहन निकाह टूटिन जाई तुम्हारा। हाँ न कहो सुभान। वैसे अल्लाह जाने का दिन भर कहा तो तुम। अखा मैंने पहले बता दिया यार कि मेरी आवाज पर ना गौर करो, सिर्फ अशार पर गौर करो। ए बेटा तू जगा रहा है इसको बे? अगर दुआ कर दूंगी तो जिंदगी भर तू कुंवारा ही बैठा रहेगा। देखो कहीं का इतना बड़ा हो गया बे, इतनी साल की उम्र, 22 साल की उम्र हो गई इसकी, शादी करने वाला हो गया, छोटे बच्चे को जगा रहा है। उठ हाँ, अल्लाह इस बच्चे को हिदायत नसीब फरमाए। आमीन 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 आमीन। हाँ, पूरी जिंदगी रहोगे कुंवारे, क्योंकि नबी का जलसा दुआएं रद्द नहीं की जाती, नबी का दुआएं रद्द नहीं करती। तो शेर मुलाजा करो, नाजिम साहब किबला मुलाजा करो, 12वीं तारीख। अच्छा पहले ये बताओ, बहने क्या कहते हैं? बहने समझते हैं? जैसे बलरामपुर तुलसीपुर के सेट में सुबह सादिक को क्या बोलते हैं? बहने। और हम लोग फखरौली की जुबान में क्या बोलते हैं? पछलाहरा। क्या बोलते हैं बेटा, बोलते कि नहीं? जी अरे आपको कुछ कह दिया करो मेरे भाई, मैं कम्मल कही जी तैयार। मुलाजा फरमाए मेरे भाई, एक मर्तबा एडवांस कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब कमेटी वाले ही नहीं बल्कि पूरे भखरौली वालों को देखना चाहता हूँ कि नबी का जलसा कैसे सुना जाता है। इसी शेर में अंदाजा लगाऊंगा, मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। ए बच्चे तुम लोगों को सुभान अल्लाह नहीं कहना, बिल्कुल नहीं कहना। हमारे बालकनी में हमारे बहुत ही करम फरमा मेरे दोस्त शाकिर भाई मुझसे बहुत दूर बैठे हुए हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, हाँ मैं उनको देख रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है वो हमको देख रहे हैं। जो जहाँ है वो हमको देखे, मैं उसको भी देखूं और नबी की नात मुलाहिजा करें। एक मर्तबा दोनों हाथों को दराज करके कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तनवीर आलम शेर देख लो, 12वीं तारीख। अच्छा का शेर मुकम्मल हो, नहीं कह सका तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मतलब हम जौन काम कहबे वही करियो, पूरी रात ठहरबे और सुबह फजर के बाद जैसे अबे यही पाबंदी लगेबे। चाय जहाँ पी लियो तो दे ही तुम्हारा काट दे। हाँ, चाय नहीं पीने दूंगा।
और जितने घर है बकरौली गांव में, ये मत समझ लेना मैं किसी का घर नहीं जानता। शाकिर भाई के गट्टे को पकड़ूंगा, चलो सबका घर बताओ। सबका घर अरे मुबीन का हाथ पकड़ लूंगा, जहीरुद्दीन को पकड़ लूंगा, इन कमेटी वाले किसी को भी पकड़ कर, ये हमारे चचा मियाँ बैठे, अल्लाह का शुक्र है बड़ी गौर फिक्र के साथ सुन रहे हैं, और अपना उनका जलसा है, कैसे नहीं नबी का जिक्र सुनेंगे। आप हजरात बिल्कुल मुतवज्जा हो जाओ, मेरी माँ बहनें भी मुतवज्जा हो जाए। सरकार की पैदाइश हो रही है, कैदो मचल कर सुभान अल्लाह। लेकिन सबसे पहले ये बता दो कि मेरे आका किस महीने में पैदा हुए, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं किस महीने में पैदा हुए। अच्छा ये बताओ धर्मेंद्र कौने महीना में पैदा भेल, शाहरुख खान नचनिया कौने महीने में पैदा भा। अच्छा अमिताभ बच्चन के परदादक नाम का रहा। अल्लाह अकबर। या अल्लाह हम तमामी मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमाए, आमीन, हिदायत नसीब फरमाए, और खास कर मेरे बच्चों को आपसे गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों को सही ढंग से तालीम दे, क्योंकि इस बार जो आपके गांव में मौलाना आया है, ये और बात है, हर वक्त खामोश रहना चाहता है, हर वक्त खामोश रहता है, लेकिन गुदड़ी में लाल छुपा होता है, क्योंकि मैंने इमाम साहब को भेजा है। ये कारी वसीम साहब, कारी इमामुद्दीन साहब को मामूली मत समझ लेना, यकीनन इल्म रखते हैं, सुभान अल्लाह, इल्म रखते हैं। बस एक शेर पढ़ रहा हूँ कारी इमामुद्दीन साहब के लिए, बस इसी शेर में इशारा हो जाएगा कि कारी इमामुद्दीन साहब को यहीं से आप समझ बैठेंगे। इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा। क्या बात है, वाह भाई वाह। सादगी पे माशाल्लाह। अरे लाल रुमलवे तो नहीं है इनके पास। और भखरौली वालों इल्म वाला होना चाहिए, लाल रुमाल हो या ना हो, अपनी जिम्मेदारी पर मैंने भेजा इनको भखरौली की सरजमीन। जी यकीनन आप अपने बच्चे को चाहे इंग्लिश पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, लेकिन 1 घंटे के लिए कोई टाइम मुंतखब कर दे। अगर आपका लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो पढ़े, मैं मना नहीं करता कि इस दौर में सबसे ज्यादा इंग्लिश की जरूरत है, और इंग्लिश के साथ साथ उर्दू की जरूरत है, वरना कौन हाल हुई है। अगर पूछ लूंगा जनाब गुस्ल में कितने फराइज हैं, तो बताना मुश्किल हो जाएगा, तो तब छटपटा कर दूसरे जवाब दे दे हो। दूसरे एक जलसे में यार फलाना, आप लोग गुस्सा ना होइएगा यार, आप लोग गुस्सा ना होइएगा, बिल्कुल मैं बिल्कुल चंद अशार पढ़ करके तकरीर शुरू करूंगा, और इंशाअल्लाह तकरीर करूंगा। लैला मजनू की कहानी सुनाने नहीं आया, बल्कि नबी का तस्करा करने आया हूँ, और इंशाअल्लाह तस्करा करूंगा। याद आ गई यार बात, वरना रानीगंज पहुंच करके कोढ़ूंगा कि ये बात रह गई जी। तो हजरत इकराम उस ये सीतापुर के जलसे की बात है। हेले पारा एक गांव पड़ता है, दुनिया में एक से एक जाहिल नहीं बल्कि बड़े बड़े अबू जहल पढ़ते हैं। गुस्ल का मौजू दिया गया मुझे, गुस्ल का मौजू दिया गया। एक 70 साल का बुढ़ा खड़ा हो गया, हजरत ये का करत हो आप, क्या का करत हो। 70 साल के हम होइबे नबी नहाइबे नहीं किरे हैं का हो। मैंने कहा दादाजी गुस्ल में कितने फराइज है बताओ। कहा 4। क्या कहा 4। कहा कौन कौन, कहा नंबर 1। गौर करना मेरे भाई, ये कमीनी की बुनियाद है। अहद करो बैठकर, अहद कर लो आज बैठ करके नबी की महफिल में, इंशाअल्लाह आधे घंटे के लिए अपने बच्चे को इमाम जो मुदर्रिस के पास, इमाम साहब के पास इंशाअल्लाह जरूर पहुंचाएंगे, तो इंशाअल्लाह। हाँ, वरना यही होगा। मैंने पूछा चाचा मियाँ गुस्ल में कितने फराइज हैं, कहा 4। मैंने कहा कौन कौन, कहा साबुन, साबुनदानी, तौलिया और पानी। क्या कहा, साबुन, साबुनदानी और तौलिया और पानी।
कसम खुदा की बकरौली वालों दुआ करो अल्लाह से कि मेरी हुकूमत आ जाए, और अगर आएगे हमारी हुकूमत, दुआ अल्लाह कबूल के लिए नबी के जलसे तो सबसे पहले 10 के नोट बंद कर दे। हम इससे इतना आजिज आ चुके हैं नबी भाई की बात का पता, जहाँ कहीं दर्शन होते नबी की महफिल में बस 10 से दर्शन हो, ये कौन तरीका हो? आप मेरी बात को बुरा ना महसूस करें, ये शाकिर भाई जानते हैं अल्लाह ने किसी चीज की कमी नहीं रखी, बस एक चीज की कमी है, एक चीज की कमी है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, मरते 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 तूने सारी ख्वाहिश को पूरी कर दिया, बस एक बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत अदा कर दे, मक्का मदीना का हाजी बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, यादगारे मदीना, यादगारे मदीना, दयारे मदीना, दयारे मदीना, नारे तकबीर, नारे वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, हक आ गया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। सुनो मुसलमानों, उफ़क़ के सुर्ख़ होठों पर कभी लाली नहीं होती, उफ़क़ के बस अब तवज्जे की जरूरत है। अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा और ना इधर उधर भागने की हमको भी जरूरत है, पर थोड़ी देर नबी का तज़किरा हो जाए ताकि अल्लाह इस पाक महफिल को अपनी बारगाह में कबूल कर ले और हम सबके मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। मुसलमान गौर करो, बड़ी पाक कमाई जलसे में खर्च की है। मैं चाहता हूँ एक एक मिनट आपका कीमती है, मैं आपके एक सेकंड को रायगा नहीं करना चाहता, इसलिए बिल्कुल मुतवज्जा हो जाओ। उफ़क़ के सुर्ख़ कभी लाली नहीं होती और रसूले पाक न होते हरियाली नहीं। उफ़क़ के सुर्ख़ होठों पर कभी लाली नहीं होती और रसूले पाक न होते तो हरियाली नहीं होती, रसूले पाक न होते तो हरियाली नहीं होती। सबसे पहले मुहद्दिसे तहलवी का फरमान सुन लीजिए। मुहद्दिसी तहलवी फरमाते हैं कि जिस बस्ती में, जैसा कि आज बकरौली की सरजमीन पर अल्लाह के प्यारे हबीब का तज़किरा हो रहा है, मुहद्दिसे तहलवी फरमाते जिस बस्ती पे नबी की विलादत का तज़किरा होता है, 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती पे अपने रहमत की बारिश बरसाता है। पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। 1 साल तक उस बस्ती पे परवरदिगारे आलम उस बस्ती को मुसीबतों से महफूज फरमा देता है। 1 साल तक उस बस्ती को परवरदिगारे आलम मुसीबतों से महफूज कर देता है। और सुनो, यही तक बस नहीं, अल्लाह फरमाता है जिस बस्ती पे नबी की विलादत का तज़किरा होता है, 1 साल तक परवरदिगारे आलम अपने रहम और करम की बारिश फरमाता है, अपने रहमत की बरसात फरमाता है। और सुनो, अल्लाह के प्यारे हबीब की पैदाइश का आलम क्या रहा होगा, वो कैसी बरकतें रही होंगी, वो कैसी रहमतें रही होंगी। खुदा की कसम, अगर बयान करो तो जुबान खुशबू देने लगे, अगर गौर से सुनो तो कान खुशबू देने लगे, अगर दिल पे बसा लो तो रूह महकने लग जाए। अल्लाहु अकबर। और सुनो, जब अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजना हुआ, जब अल्लाह को अपने महबूब को दुनिया में भेजना हुआ तो सुनो, इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जरा मिंबर लगा दे, ऐ जिब्रील मिंबर लगा। अल्लाह फैसला क्या, अल्लाह फैसला क्या है? काहे जिब्रील मिंबर तो लगा, मिंबर लगाया गया। और जैसे मिंबर लगाना, अल्लाह ने कहा मीकाईल को बुलाओ, मीकाईल को बुलाया गया। और जैसे मीकाईल को बुलाया गया, अल्लाह ने फरमाया, हे मीकाईल, अब जरा तुम इस मिंबर पर खड़े हो जाओ, मेरी हम्द व सना बयान करो, मेरी तस्बीह व तहलील बयान करो, मेरी हम्द बयान करो। अल्लाह ने जैसे इतना फरमाया, मीकाईल मिंबर पर खड़े हो जाते हैं और इस शान के साथ अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, इस शान के साथ बयान करते हैं कि पूरा अर्श वक्त में झूमने लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और यही तक बस नहीं, अल्लाह ने फरमाया, है जिब्रील आज पूरी जन्नत सजा दे। सुभान अल्लाह। है जिब्रील
आज पूरी जन्नत सजा दे। और जब जन्नत सजाने की बात फरमाई मेरे अल्लाह ने, तो जिब्रील ने कहा या अल्लाह, जन्नत तो कहते ही उस खूबसूरत, जन्नत तो कहते ही उस चीज को है जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील होती है। जन्नत तो बड़ी खूबसूरत होती है, जन्नत तो बड़ी हसीन और जमील होती है। अल्लाह ने फरमाया ये जिब्रील, तुझे मालूम नहीं है, तुझे खबर नहीं है, तुझे पता नहीं है, आज मेरा महबूब आने वाला है। सुभान अल्लाह, आज मेरा महबूब आने वाला है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये जो आप लोगों ने सजावट की है, अपनी पाक कमाई को खर्च करके, कसम खुदा की, एक एक रुपया, एक एक पैसे आपका जाया नहीं हो जाएगा। ये फजूल खर्ची नहीं, बल्कि अल्लाह दुनिया में भी इसका सवाब अता फरमाएगा, आखिरत में भी इसका सवाब अता। सुभान अल्लाह। बड़ी बरकतें होती है नबी की महफिल में, बड़े फ्यूज़ और बरकत मिलते हैं नबी की महफिल में। और सुनो, ये तो जन्नत की बात रही, जरा गौर कर लो यार, ये तो जन्नत की बात रही। जब मेरे अल्लाह ने मुस्तफा के नूर को पुश्ते आदम में रखा, अब तो कह दो यार सुभान अल्लाह ने मेरे महबूब के नूर ये जाने दीजिए। मैंने अभी कहा था जब ऐसी कोई जरूरत होगी तो चले जाइएगा, क्योंकि नबी की पाक महफिल है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते जिन जिन को हाजत है सब लोग चले जाओ, अल्लाह के फरिश्ते मेरी तकरीर सुनेंगे। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जब मुस्तफा के नूर को पुश्ते आदम में रखा ना, जैसे पुश्ते आदम में रखा, फरिश्ते पीछे आकर खड़े हो, फरिश्ते हाथ बांधकर आदम के पीछे खड़े हो गए। अब जिधर जिधर आदम जा रहे हैं, फरिश्ते उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब वही नूर मुंतकिल हुआ, अब वही नूर मुंतकिल हुआ, आदम की पेशानी में आया। और जैसे आदम की पेशानी में वो नूर आया ना, अब फरिश्ते जो अब तक पीछे खड़े थे वो सामने आकर खड़े हो गए, आगे आकर खड़े हो गए। और जैसे फरिश्ते आगे खड़े हो गए, आदम ने कहा या अल्लाह, माजरा क्या है? ये फरिश्ते कुछ दिनों तक मेरे पीछे खड़े रहे, अब आगे आकर खड़े हो गए हैं, अब आगे आकर खड़े हो रहे हैं, मौला माजरा क्या है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम ये फरिश्ते तेरी ताज़ीम में नहीं खड़े हैं, बल्कि मेरे महबूब के ताज़ीम में खड़े हैं, मेरे महबूब के ताज़ीम में हैं। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। आदम ने कहा या अल्लाह, जब तेरे महबूब के जलवे इतने शान वाले, और फरमाया, अल्लाह ने फरमाया जब तेरे महबूब के जलवे इतनी शान वाले, तो जरा अपने महबूब के जलवे मुझे भी दिखा दे, और इस नूर को किसी ऐसी जगह पे रख दे कि मैं भी उस नूर की ज़ियारत कर सकूं, मैं भी उस नूर को देख सकूं। अब अल्लाह ने उस नूर को आदम के पेशानी से उठाया है, उठाने के बाद आदम के दोनों अंगूठों में रखा है। और जैसे आदम के दोनों अंगूठों में उस नूर को रखा गया है, आदम ने देखा है जैसे, और जैसे आदम ने उस नूर को देखा है, मुस्कुराए बाद में है, चूमने पहले लग गए हैं। अब अगर कोई उम्मती मुस्तफा का नाम सुनकर अजान में दोनों अंगूठों को चूमता है, तो कान खोल करके सुनाओ, वो शिर्क को बिदअत नहीं करता, बल्कि अपने बाप आदम की सुन्नत अदा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने बाप आदम की सुन्नत अदा करता है। और सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, मुझे ऐसा वैसा मत समझना, अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया। मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। कौन फरमा रहा है? मेरे नबी फरमा रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप जहन्नमी थे, एक बार मिलकर कह दो माज़अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप जहन्नमी थे। अब जरा जहन को हाजिर करो, तवज्जो की जरूरत है। अरे पूछो जरा इन लोगों से, मेरे नबी तो फरमा रहे हैं अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया। नबी फरमाते हैं
जिन जिन पुश्तों में मेरा ये नूर जाता रहा वो भी इज्जत वाले बनते रहे, और जिन जिन रहमों में मेरा ये नूर जाता रहा वो भी इज्जत वालियां बनती रही। अब जरा सोचो तो सही, जिधर से नूरे मुस्तफा गुजर जाए वो शान वाला, तो जिसके शिकम में मेरे आका का नूर 9 महीने में रहे, 9 महीने रहे, वो मां शान वाली क्यों नहीं हो सकती? ईमानदारी का फैसला करो, कोई भी आ जाएगा जलसे में भगाऊंगा नहीं, लेकिन तासुब की ऐनक उतार करके बैठना, ईमानदारी का चश्मा लगाना और प्यार से आला हजरत के दामन को पकड़ना और यूं कहना, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल फरमाया। अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया। नबी फरमाते जिन पुश्तों से मेरा ये नूर गुजरा वो शान वाला, जिन रहमों में मेरा ये नूर गुजरा वो शान वाला। अल्लाह ने उनको गुनाहों से भी पाक रखा और शिर्क से भी पाक। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उनको गुनाहों से भी पाक रखा और शिर्क से भी मतलब पाक रखा। ये मैं अपना तज़किरा नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक का तज़किरा कर रहा हूँ। अब जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, जब अल्लाह ने मुस्तफा के नूर को अब्दुल्ला के पुश्त में रख दिया। अब्दुल्ला को जानते हैं आप? अब्दुल्ला के पुश्त में रखा और जैसे अब्दुल्ला के पुश्त में ये नूर गया है, आपका निकाह सैयदा आमना से हो रहा है, आपका निकाह सैयदा आमना से हो रहा है। अरे तेरे मेरे बाप की बात करूं यार तो तू भी खुश होगा, तेरी नस्लें भी खुश होंगी, लेकिन आज बखरौनी की सरजमीन पर उस नबी का तज़किरा कर रहा हूं कि जिसका जिक्र सुन के ना तू मैं खुश होगा बल्कि मदीने वाला भी खुश होगा, दोनों जहान वाला भी खुश होगा। सुभान अल्लाह। जैसे निकाह हुआ ना, किसका निकाह? ए बेटा, किसका निकाह? किसका निकाह की बात कर रहा हूं? जैसे आमना खातून अब्दुल्ला के निकाह में आई है ना, और जैसे अब्दुल्ला से नूर मुंतकिल हुआ, आमना के शिकम में आया, नूर मुंतकिल हो गया। अब वही नूर आमना के शिकम में आ गया है। आमना का शिकम में जैसे नूर आया है, अभी 2 महीने का अरसा गुजरा, अभी 2 महीने का अरसा गुजरा है, अभी 2 महीने का अरसा गुजरा है। लोग कहते हैं क्या बयान करते हो नबी की मिलाद में? अरे काफिलो, ऐ लोगों, तुम्हें पता ही क्या है कि नबी की मिलाद क्या है? तुझे खबर ही क्या है कि नबी की मिलाद क्या है? तूने नबी की मिलाद को करीब से समझा ही कहाँ है? तूने नबी की मिलाद को करीब से जाना ही कहाँ है? अरे कितने कम ज़र्फ हैं वो लोग जो कहते हैं नबी हमारी तरह, कितने कम अक्ल हैं वो लोग जो कहते हैं नबी हमारी तरह, कितने बेवकूफ है वो लोग जो कहते हैं नबी की हमारी तरह। अरे सुन, ये बरेली वाले अहमद रजा नहीं कह रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको नबी की अम्मी सैयदा आमना कहा जाता है, सैयदा आमना कहा जाता है। सैयदा आमना फरमाती है जैसे मेरे लाल का नूर मेरे शिकम में आया है, जैसे मेरे नूरे नजर का नूर मेरे शिकम में आया है, मेरे शिकम में आया है। अभी 3 महीने का अरसा गुजरा है कि अब्दुल्ला परदेश जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब अब्दुल्ला ने जैसे घर से कदम निकाला, निकालने से पहले मुझे तसल्ली दे रहे हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, मैं परदेश जा रहा हूँ, परदेश से कुछ दिनों के बाद वापस आऊंगा, तब तेरे हाथ की पकाई हुई रोटी खाऊंगा, तेरे साथ में बैठ करके मोहब्बत भरी बातें करूंगा। ये अब्दुल्ला तसल्ली दे रहे हैं हजरत आमना को। क्या कहोगे उस खातून के बारे में जिसका शौहर ने घर छोड़ा है और ऐसे आलम में घर छोड़ा है कि शिकम में बेटे की अमानत मौजूद है? क्या कहेंगे उस खातून के बारे में? अब जैसे हजरत अब्दुल्ला ने घर से कदम निकाले हैं, रास्ते में आपकी तबीयत खराब हुई, और जैसे अब्दुल्ला की तबीयत खराब हुई ना, आपका वही इंतकाल हो जाता है, और जब इंतकाल हुआ अब्दुल्ला को वही मदफून कर दिया जाता है।
लेकिन आमना को कुछ पता नहीं है, आमना को कुछ खबर नहीं है, आमना को कुछ खबर नहीं है। रोजाना बैठकर इंतजार किया करती थी, शायद मेरे अब्दुल्ला आज आने वाले हो, शायद अब्दुल्ला आज आने वाले हो, शायद अब्दुल्ला आज आने वाले हो। जब शाम को परिंदे घर पलट कर वापस आते तो सैयदा आमना रात के सन्नाटे में अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती, इंतजार करती, आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। कई दिन तक इंतजार करते गुजर गए, ना अब्दुल्ला आए हैं, ना अब्दुल्ला की कोई खबर आई है। आप तन्हा आमना बिस्तर पर लेटी हुई है, अब्दुल्ला को याद करके रो रही हैं, अरे अब्दुल्ला तुम आखिर कब वापस आओगे, कहाँ चले गए हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक दी गई, अब्दुल्ला बाहर निकलती है और जैसे आमना बाहर निकलती है क्या देखती है, एक शख्स खड़ा हुआ है और बयान कर रहा है, ए आमना रोने की जरूरत नहीं है, बिलखने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अब्दुल्ला अब कभी वापस नहीं आ सकते, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है, अब अब्दुल्ला वापस कभी नहीं आएंगे। जैसे ही इतना सुनती है तड़प जाती है आमना, सारों कतार रोने लगती है और कहती है अभी तो मेरा लाल दुनिया में भी नहीं आया है, इतनी जल्दी कैसे यतीम हो गया है। आवाज सुनकर अब्दुल मुत्तलिब भी आ जाते हैं, ऐ बेटी किस लिए रो रही है, ऐ बेटी तेरे रोने की वजह क्या है। आमना बयान करती है, अब्बू जान तुम्हारे लगते जिगर की खबर आई है, अब अब्दुल्ला वापस कभी नहीं आएंगे। जैसे इतना सुनते हैं अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकल जाती है, इधर आमना तड़पी है, इधर अब्दुल्ला तड़पे है, उधर मालिक ने फैसला सुना दिया, मालिक ने फैसला सुना दिया, अरे आमना उदास होने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, बिलखने की जरूरत नहीं है। अरे आमना सुनो, मायूस न हो, मैंने अपने महबूब को बेसहारा नहीं बल्कि सारे जहान का सहारा बना के भेजा है, सारे जहान का सहारा बना के भेजा है, सारे जहान का सहारा बना। आप सुन रहे ना, सुन रहे ना। चलिए 2 घंटे की गुफ्तगू को हम 10 मिनट में समेटे दे रहे हैं, मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाए। हाँ नहीं वो मैंने कहा नहीं था। हाँ शैतान समझ गए, अब नींद आने वाली है, नींद आने वाली है। चलो ये देखिए तशरीफ फरमा है, जरा देख लो, और पैर पर तशरीफ फरमा है। बेटा किसी तरह से इसको हटा दो, लेकिन बच्चे, हाँ लेकिन बच्चे के, अरे कोई शख्स है जो इस मेढक को हटा दे। अल्लाह ने शायद कबूल कर लिया, ये नहीं, इन्होंने सबक हासिल नहीं किया, लेकिन मेरी आवाज फरिश्तों ने अल्लाह तक पहुंचा दिया कि मौलाना आफाक की आवाज भी नहीं साथ दे रही है और आज ये बदरौली वाले भी साथ नहीं दे रहे। मेढक ही से जलसे को खराब कर दिया। जी ए बेटा चुपके से बैठा ले जाओ, ताकि तुम्हारा जलसा, तुम्हारा जलसा। बेटा बैठ जाओ। क्यों बे, इलेक्शन में अभी से खड़ा हो गया, बट बेहुदा कहीं कैसी परवरिश की है तेरे महीने में। खामोश बैठ, थोड़ी देर रहो। अब जरा गौर करो, 2 महीने गुजरे और तय मुतवज्जा हो जाए। आमना कहती है, आमना का नाम आया करे तो मचल जाया करो यार। ये आमना कोई ये भकरौली की आमना की बात नहीं कर रहा हूँ, कुंडासर के आमना की बात नहीं कर रहा हूँ, बहराइच के आमना की बात नहीं कर रहा हूँ, बदरौली के आमना की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुसलमानों अपने नबी के माँ का नाम का तस्करा। तुम क्या समझ रहे थे, भकरौली के आमना की बात कर रहा हूँ। जरा गौर करो, ये आमना इस काबिल ही नहीं है कि मिंबर रसूल पर इनका तस्करा किया जाए, इस काबिल नहीं है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, 2 महीने गुजरे। कितने महीने? 2 महीने। 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे। आमना फरमाती है जैसे 4 महीने गुजरे, मेरे लाल का नूर मेरे शिकम में आया, मेरे अंदाज बदल गए, मेरे तौर तरीके बदल गए। अंदाज कैसे बदला? आमना कहती है मेरे तरीके निराले हो गए, मेरे अंदाज अनोखे हो गए। अब जरा गौर करो, अब्दुल
المطلب خانہ کعبہ میں ہے، اتنے میں جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، جو مکے کے بڑے بڑے امیر تھے، دوڑتے ہوئے حرم کے اندر پہنچے، کہنے لگے عبد المطلب آپ کعبے کے سردار ہیں اس لیے ڈر لگتا ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو کہو۔ کہا عبد المطلب ڈر لگتا ہے، آپ کعبے کے چودھری ہو، کعبے کے متولی ہو، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو۔ کہا عبد المطلب ہمارے اور تمہارے عرب کا دستور یہ ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو 1 سال تک کوئی عورت خوشبو نہیں لگا سکتی ہے، 1 سال تک بند سبر کے نہیں نکلنا ہوتا ہے، 1 سال تک خوشبو نہیں لگانی ہوتی۔ بند کر دوں میرے بھائی؟ نہیں بڑھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ اچھا بڑھانے کا یعنی جلسہ دل 3 بجے۔ اچھا جلسہ دے لے میرے بھائی، آپ دن مجھے معذرت دے دو اور انشاءاللہ اگر دوبارہ میرا آنا ہو گیا تو 1 گھنٹہ کہو گے تو 5 گھنٹہ تقریر کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن بابو دیکھ رہے ہو کہ میری پوزیشن کیا ہے جی، ایک جملہ کہنے میں میرے بھائی بڑی محنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی۔ تو حضرات گرامی تھوڑی دیر متوجہ ہو جاؤ، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ دراز کر کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عبد المطلب ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا عرب کا دستور یہ ہے عورتیں شوہر کے انتقال کے بعد 1 سال تک نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہیں، 1 سال تک سرما نہیں لگا سکتی ہیں، 1 سال تک آنکھوں میں سرما نہیں لگا سکتی ہیں، کنگھی نہیں کر سکتی ہیں، بس میلے کچیلے صرف کپڑے پہن سکتی ہیں۔ اور اے عبد المطلب سنو، ابھی تمہارے بیٹے کے انتقال کو 3-4 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، 3 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، اور اے عبد المطلب سنو، تمہاری بہو عطر لگا کے مارکیٹ جاتی ہے، مکے کے گلیوں سے گزرتی ہے، اور اس کے بدن سے ایسی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ خوشبو اس کے بدن سے لوٹ کر کے گزرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا جیسے کعبے کے چودھری نے سنا، پیروں تلے زمین نکل گئی، پیروں تلے زمین نکل گئی، بڑے بوجھل قدموں سے گھر آئے ہیں۔ گھر آنے کے بعد بیوی کو بلایا ہے، نبی کی دادی کو بلایا ہے، اور کہنے لگے ہیں اے میری زوجہ، آج تک مکے کی سرزمین پر کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ عبد المطلب کی گردن جھکائے، لیکن آج میں حرم کے اندر سے ایسی گردن جھکا کر کے آ رہا ہوں کہ سر اٹھانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اتنا جیسے سنتی ہے نبی کی دادی، اتنا جیسے سنتی ہے، کہتی ہے تم یہی ٹھہرو، میں خود جا کر کے آمنہ سے بات کرتی ہوں، گفتگو کرتی ہوں کہ تم عطر کیوں لگاتی ہو۔ اب دوڑتی ہوئی جلدی جلدی آمنہ کی خدمت میں پہنچتی ہیں۔ اس وقت آمنہ دیوار کی ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی، عبداللہ کے غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اتنے میں نبی کی دادی پہنچی، کہنے لگی اے آمنہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اتنا سننا تھا۔ آمنہ کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ کہا امی کیا کہنا چاہتی ہو؟ آج تک میں نے اپنے شوہر کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، آج تک مکے کے دستور کے خلاف میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ امی جان کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شوہر کے انتقال کو ابھی چند دن گزرے ہیں، 3 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، 4 مہینے کا عرصہ گزرا ہے۔ اے بیٹی تم عطر کیوں لگاتی ہو؟ اے بیٹی تم عطر کیوں لگاتی ہو؟ ابھی اتنا جیسے سنا ہے نا، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا یار۔ عرض کرتی امی جان جیسے اس بات کو سنا نا، آمنہ تڑپ جاتی ہیں، کبھی بیٹھتی ہیں تو کبھی اٹھتی ہیں، روتی ہیں، غم سے نڈھال ہو گئی ہیں، اور کہتی ہیں اماں تم سے اس بات کو کس نے کہا ہے؟ کہا عبد المطلب سے حرم کعبہ میں لوگوں نے کہا ہے۔ آمنہ نے کہا تو پھر عبد المطلب کو میرے سامنے بلایا جائے۔ اب جیسے عبد المطلب آئے ہیں، کہا ہے بیٹی کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اب جس مقام پر آمنہ بیٹھی ہوئی تھی تھوڑا ہٹ کے وہاں کی مٹی اٹھاتی ہیں، جس مقام پر بیٹھی ہوئی تھی آمنہ وہاں کی مٹی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد عبد المطلب کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد کہا ابا جی ذرا اس مٹی کو سونگھ کر کے بتائیے آج میں نے اس میں کون سی خوشبو ملائی ہے، آج میں نے اس میں کون سا عطر ملایا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں، حضرت عبد المطلب جیسے اس مٹی کو اپنے ناک کے قریب لے جاتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے
जी इस मिट्टी को कल फिर सूंघना, ये मिट्टी कल भी महकेगी, ये मिट्टी परसों भी महकेगी, ये मिट्टी नरसों भी महकेगी। अरे अब्बा जी जब तक ये दीवार रहेगी ये मिट्टी ऐसे महकती रहेगी। सुभान अल्लाह। ये मिट्टी ऐसे महकती रहेगी। फिर आमना ने क्या कहा, अब्बा जी मेरा कदम यहाँ पर था, पैरों को हटाया आमना ने, पैरों के नीचे की मिट्टी उठाई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में रखा। अब्बू जी जरा इस मिट्टी को भी सूंघ करके बताइए, इस मिट्टी में मैंने कौन सी खुशबू मिलाई है, कौन सा इतर मिलाया है। उस मिट्टी को जैसे अब्दुल मुत्तलिब सूंघते हैं, सूंघ करके हैरत में पड़ जाते हैं और कहते हैं बेटी तू ही बता दे माजरा क्या है, अरे मेरी बेटी तू ही बता दे आखिर माजरा क्या है। अब जैसे इतना सुना है हजरत आमना तड़प जाती है और कहती है अब्बू जी एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैंने अहद कर लिया था इस राज को किसी को बताऊंगी नहीं, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बताना ये चाहती हूँ। अब्बा जी मैंने कोई इतर नहीं लगाया है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि अब्बा जी सुनो सच्चाई ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महक जाती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने बखरौली। अब्बा जी यहीं तक बस रहे, मैं जिस मकाम पर थूक देती हूँ उस मकाम से खुशबू आती है, जिस बिस्तर पे बैठ जाती हूँ उस बिस्तर से खुशबू आती है। अब्बू जी यहीं तक बस नहीं, मैं घर के जिस गोशे में जाती हूँ घर का वो गोशा महक उठता है। अब्बा जी मैं खाना पकाती हूँ तो खाना खुशबूदार हो जाता है। हमारे समझ में यही बात आती है, ये वाकया उस वक्त से पेश आया है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है। जहाँ चली जाती हूँ वो घर खुशबूदार हो जाया करता है। सुभान। ये सामने बैठे वाले बच्चे तो नहीं सुधरे यार, लेकिन माँ बहने जब से मैंने इन माँ बहनों को आगाह कर दिया है इतना जबरदस्त थप्पड़ मारूंगा सारी बत्तीसी गायब हो जाएगी, नालायक कहीं का। अरे मैं तो समझ रहा था कि छोटा सा बच्चा मामला कर रहा है, जब इतनी देर के बाद मजमे को कंट्रोल कर पाया हूं। और मजमा ये और बात है कि कम लोग रह गए हैं, लेकिन कसम खुदा के मुसलमानों जो जलसा देखने आए थे सब हो गए। जलसों में सब लोग सुनने वाले नहीं होते, देखने वाले। याद रखो रुपए में 75% तो जलसा सुनने वाले लोग हुआ करते हैं, 75% नहीं 50% जलसा सुनने वाले होते हैं और 50% जलसा देखने वाले होते हैं। उनकी तमन्ना होती है कि हम राड को देखेंगे, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम डीजो को देखेंगे, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम कुमकुमे को देखेंगे, उनकी ख्वाहिश होती है कि जब तक हम जलसे को बर्बाद नहीं करेंगे उस वक्त तक तब नहीं ले आएंगे। लेकिन खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जलसा देखने वाले थे सब भाग गए हैं, जितने बचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाले बचे। सुभान अल्लाह। और याद रखो सबके मुकद्दर में नहीं है नबी का तस्करा सुनना। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या नाम है दादाजी आपका? मोहम्मद याकूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मोहब्बत से नबी का तस्करा सुन रहे हैं। अल्लाह इसी तरह हम सबको सुनने की तौफीक अता फरमाए। और कसम खुदा की अगर शुरू में गौर कर लिया होता उन्होंने तो पूरी रात अगर बयान करता तो उठने का नाम नहीं है। जी ये आबिद रजा कहाँ चले गए? ये आबिद रजा जानते गुज़िश्ता रात में ये मेरे साथ में थे घाघरा घाट की सरजमीन पर। कसम खुदा की मुसलमानों 2.5 घंटे बोलने के बाद जब मैंने कुर्सी छोड़ी है पूरा मजमा खड़ा हो गया है। हजरत अभी 2 घंटा हो, मैंने कहा माफी दे दो यार, रबीउल अव्वल में 1 तारीखें मेरी खाली नहीं है, मुझे बल न चढ़ाओ, जनरेटर न समझो कि तेल डाल करके लगा दो हैंडल। अरे भारत की सरजमीन पर जितने मौलाना लोगों को आपने देखा होगा किसी का 1 बालिश्त पेट बाहर है तो किसी का 2 बालिश्त बाहर है, किसी का 3 बित्ता बाहर है। और मौलाना आफाक है ऐसे हिंदुस्तान में कि 2 बित्ता पेट अंदर जा रहा है। जरा गौर करें, अंदर जा।
تو تھوڑی دیر اور گفتگو کر سکتا ہوں آپ سے؟ یعقوب صاحب کیا خیال ہے؟ آگے بڑھا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب اتنا سننا تھا. عبد المطلب سر پکڑ کر بیٹھ گئے. میری ماں بہنیں ذرا تھوڑی دیر غور کر لو. جیسے آمنہ نے اتنا کہا ابا جی میں جس جگہ پر تھوک دیتی ہوں اس جگہ سے خوشبو آنے لگتی ہے. عبد المطلب سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں, بڑی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں. اس کے بعد عبد المطلب نے کیا کہا معلوم ہے؟ ہاں